Hello everyone, I am Neha. Since some of you asked me to share my preparation strategy for CSIR NET examination or in general any examination, so yeah, here it is. So I'm gonna tell you how I started and what strategy I followed during the preparation journey which worked well for me. So the first thing is going to be understanding the pattern and the syllabus of examination. This is one of the most important and crucial steps while preparing for any exam. Always know that syllabus चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको सिर्फ कुछ पार्ट ही करना है. आपको सिर्फ 40% सिलेबस ही पढ़ना है ना. अगर आपको जानना है कि वो 40% सिलेबस कैसे पता करें, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है. You can watch it after this. So this was about syllabus. Also understand the pattern of the exam. जैसे अब CSIR नेट के एग्ज़ाम में सिर्फ MCQs and MSQs ही पूछे जाते हैं, दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस. तो अब अगर आप प्रिपरेशन के टाइम पर बैठकर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यू आर क्लियरली वेस्टिंग योर टाइम. तो आपको पैटर्न समझना पड़ेगा एंड देन उसी टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. For example, MCQs में we have 4 options. So try to discard the options. It will help you reach towards your answer more easily. And this ability of discarding options, it comes only with the practice. तो आप MCQs को ना इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन देखते से ही समझ में आ जाए कि इस क्वेश्चन में ऑप्शंस ईजिली डिस्कार्ड हो जाएंगे या तो इस क्वेश्चन में डिस्कार्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा. तो ये चीज़ तो प्रैक्टिस के साथ ही आएगी. So now comes the next thing, which is your study material. One of my friends always used to say this, study less, study more, which basically means study less material but study them very nicely. तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं दैट वो बहुत सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं थिंकिंग कि मैं ये सब पढ़ लूँगा या फिर सब पढ़ लूँगी, बट अल्टीमेटली वो अच्छे से कुछ भी नहीं पढ़ पाते. So it's important to know that you should have very less and concise study material, but make sure you study them very nicely. Then after study material आपको questions की practice करनी है बहुत सारे, तो वो तो मैंने बता दिया already. Yeah, one thing is you need to practice PYQs. So somebody told me that if you are an aspirant, then PYQs are like your Bible. And by PYQs, I mean past 10 to 12 years के papers are more than enough for NET. And since हर साल NET 2 बार कंडक्ट होता है, तो आपके पास अराउंड 20 पेपर्स हो जाएंगे. एंड अगर आप इन 20 पेपर्स को बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, देन यू आर ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द एग्ज़ाम. नाउ बाय दिस आई मीन आपको क्वेश्चन लॉजिकली बनने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रट्टा मार रहे हैं. दैट डजंट वर्क. So it should be like you know the logic behind every question that came in the past years. And one more thing, practice PYQs at least twice. मतलब 2 बार तो करने ही चाहिए. आप 3 से 4 बार करते हैं तो और भी अच्छा होगा. Now प्रिपरेशन करते टाइम हमें बहुत बार ये थॉट्स आते हैं दैट हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा. कभी कभी मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. तो इसके लिए ना आपको खुद को बहुत मोटिवेटेड रखना पड़ेगा. यू हैव टू क्रिएट दैट इन्वायरमेंट फॉर योर सेल्फ. सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज़ मेक फ्रेंड्स who are preparing for the same exam and try to discuss questions with them as much as you can. Try to teach them the concepts, because if you have friends around you who are preparing for the same exam, तो naturally एक learning environment बन जाता है. Because when you see that your friend is studying, तो आपको भी पढ़ने का मन करेगा. अगर आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ask your friends and tell them your approach first, that मैंने ये अप्रोच किया एंड इससे मेरा आंसर नहीं आ रहा है. तो आपको आपके फ्रेंड्स बताएंगे कि आपके थॉट प्रोसेस में कहाँ पर मिस्टेक थी. Like I was blessed with amazing friends who used to discuss many questions with me, and उन डिस्कशन से ही मैं बहुत कुछ सीखती थी. एंड मैं हर दिन किसी ना किसी फ्रेंड को कॉल करके डिस्कस करती ही थी. इट यूज़ टू गिव मी लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड अच्छा लगता था कि येस वी लाइक मी एंड माई फ्रेंड वी बोथ आर ग्रोइंग टुगेदर. हम दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अब सॉल्व होने लग रहे हैं. एट लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट सीरीज. नाउ इट इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ 3 things.
फर्स्ट आप इससे टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। सेकेंड, आपको आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता चल जाता है दैट आपके कौन से टॉपिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड कौन से टॉपिक्स में आपको वर्क करने की ज़रूरत है। एंड द थर्ड थिंग इज़ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ऑल्सो यू नीड टू मेक अ प्रॉपर शेड्यूल फॉर योर सेल्फ। लाइक अगर आपने डिसाइड किया कि आप दिन की इन 3 घंटों में पढ़ाई करेंगे, देन यू हैव टू स्टडी इन दोज 3 आवर्स नो मैटर व्हाट। देन आपके कोई फैमिली मेम्बर्स आ जाए, कोई फ्रेंड्स आ जाए, रिलेटिव्स आ जाए, पार्टनर आ जाए, एनीबॉडी कम्स, चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, आपको उस 3 घंटे में पढ़ाई करनी ही करनी है। तो इसी तरह आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल बनाना है कि कौन सा सब्जेक्ट कब तक ख़त्म हो जाएगा, एंड डेली शेड्यूल भी बनाना है कि आप इन 3 घंटे में या तो फिर इन 2 घंटे में पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड मेक टारगेट्स फॉर योर सेल्फ कि आज के दिन में मुझे ये ख़त्म करना है, एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो इससे इवेंचुअली आप एक शेड्यूल के अंदर आ जाएंगे। इट विल टीच यू टू बी डिसिप्लिन। येस, आई वुड लाइक टू ऐड दैट CSIR नेट में आपको पार्ट ए में एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इफ़ योर एप्टीट्यूड इज़ गुड देन इट्स परफेक्ट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इफ़ इट इज़ नॉट गुड, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट स्लोली। Like try to solve any 8 to 10 questions every day from aptitude because it is easy to score marks in the aptitude। तो अगर आपका सब्जेक्ट बेस्ड लाइक पार्ट B एंड C थोड़ा सा बिगड़ भी जाता है ना, तो पार्ट C के थ्रू आपके टोटल मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। सो येस, एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, तो इट विल बी वेरी नाइस फॉर योर प्रिपरेशन। सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट स्टडीज़। Now when you go inside the exam hall, you know that your exam is going to be of 3 hours। नाउ आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं, वो सिर्फ उन 3 घंटों का ही खेल है। सो फॉर दैट यू रियली नीड टू बी पॉजिटिव एंड जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, बिकॉज आई हैव सीन दिस विथ माई सेल्फ दैट अगर मुझे कोई चीज़ आती भी है बट अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई या तो अंडर कॉन्फिडेंट हो गई, तो वो चीज़ पक्का बिगड़ जाती है। तो आप ये भरोसा रखिए कि आपने जो भी पढ़ा है दैट इज़ इनफ, एंड जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ इन दोज 3 आवर्स, बिकॉज वहाँ पे आपका साथ सिर्फ आप ही दे सकते हैं। And manifest that you are already there. Start saying positive things about yourself, and yes, stay consistent, be positive, be motivated, and हो जाएगा यार, इतना भी difficult नहीं है। So I hope this video is helpful for all the aspirants out there. So yeah, if you have any doubts or queries, do let me know in the comments below. I'll see you in the next video very soon. Till then, keep hustling, keep studying.